होता है. Okay. Now we take another case of alpha particle because there is a beam of particle. तो beam of particle means इस पूरे लाइन पे alpha particle हमारे beam का value beam का cross section ज्यादा होता है with respect to nucleus. Nucleus आपका area cross section कितना Fermi में होगा, tens of Fermi में होगा, लेकिन beam millimeter or fraction of millimeter में होता है. That is covering very large number of nucleus. So we can consider one more alpha particle which is at this point, which is just directly along this line. तो हो सकता है पॉसिबल है जो बिल्कुल इसके सेंटर पे ही फ्लो कर रहा हो, बिल्कुल ये वाला अल्फा पार्टिकल जो इसके सेंटर को हिट करेगा. तो व्हाट हैपेंस आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन इट गोज नियर टू द न्यूक्लियस, it has to come back. Okay, so there is a velocity, it will go to this point, it will stop for a moment and then it will revert back and it will move in this direction. जो हमारे एनिमेशन में दिखा, जाएगा पहले, फिर स्टॉप हो जाएगा because there is a Coulomb repulsion, so that will stop and again it will start moving in the opposite direction. So that is 180 degree deflection. Direct line ये है और motion इसका वापस इधर हो गया, तो there is a 180 degree of scattering angle. तो बिल्कुल flip हो गया उसका direction. This distance from the center to this particular point, because alpha particle is very small, we can consider as a point with respect to this one. So this is called D. And D is normally called as distance of closest approach. Distance of closest approach आपके काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग वो कितना क्लोज जा सकता है न्यूक्लियस के. सो दैट इज अ डी. सो एट दिस पॉइंट इफ आई एम टॉक, हमने यहाँ पे लिख लिया, इस पॉइंट पे हमारे पास ये कंडीशंस थे, इस पॉइंट पे ये कंडीशंस हैं, इस पॉइंट पे ये कंडीशंस हैं. तो वी हैव गॉट द डिफरेंट ऑल द पैरामीटर्स एट डिफरेंट पॉइंट इन द ट्रेजेक्टरी. So at this point, at this moment, what will be the value of other things? That is angular momentum, your kinetic energy, and your potential energy. So if I talk about L, what will be the value of L, V, and T at this moment when it is stopped? T की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, there is no motion. इसकी वैल्यू क्या होगी? Z E, capital Z E, 4 pi epsilon naught D. D is the distance between these two center, nucleus का center और alpha particle का center. And what about L? L की वैल्यू क्या होगी? There is no perpendicular distance. It is just along the line, so that will be 0. ठीक है, तो जो भी पार्टिकल आपके बिल्कुल सेंटर को हिट कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम 0 है, पहले भी और रिएक्शन के बाद भी. वापस जब जा रहा है उसी लाइन पे जा रहा है तो अगेन इट इज 0. बट अगर किसी पार्टिकल का B है impact parameter, so it will have a angular momentum, and angular momentum must be conserved before the reaction and after the reaction. That is one of the basic conservation. Even the energy has to conserve if you're talking about elastic scattering. Okay, so D का relation हमारे पास easily आ जाता है. D is very easy to calculate. ये तो सिर्फ मैंने अभी potential के terms में लिखा है. But now we will write in two different way. Now we will do कि हम थोड़ा सा और डेरिवेशन को डिटेल में जाए. डायग्राम इज इट क्लियर टू यू? देन वी कैन फ्लिप इट. डायग्राम क्लियर है? यस सर. ठीक है, यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना भी है और अलग अलग वैल्यू लिखने भी है. क्रेन में भी आपको डायग्राम मिल जाएगा. ओके, नाउ फॉर B इक्वल टू 0, यानी जो पार्टिकल आपके बिल्कुल सेंटर को हिट कर रहे हैं, फॉर दोज पार्टिकल्स half of mv naught square, that is kinetic energy, will become equal to z small z capital Z upon 4 pi epsilon naught d. पूरा का पूरा kinetic energy आपका पूरा का पूरा potential energy में convert हो जाएगा for a moment, and then again this potential energy will back convert into the kinetic energy, and again you will get same kind of velocity. So for time being it is stopped and then it is being pushed in a opposite direction. So we can easily predict what is the value of D. अगर हमने reaction नहीं भी किया है, then also we can find how close alpha particle will go because its kinetic energy is going to decide. अगर आपने न्यूक्लियस फिक्स कर लिया है कि आपने ये Z है, C है, न्यूक्लियस अगर आपने फिक्स कर लिया, अल्फा पार्टिकल आपका फिक्स हो गया, ये नंबर फिक्स्ड है,
और ये आपने पैरामीटर खुद से डिसाइड किया कि मुझे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या रखनी है, काइनेटिक एनर्जी, देन यू नो व्हाट इज द डी, हाउ क्लोज इट विल गो टू द न्यूक्लियस। तो डी हम इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, जेड ई, इसको हम जेड स्क्वायर कर देते हैं, इसको कैपिटल जेड यहाँ लिख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी अल्फा। टी अल्फा मैं सिर्फ टी लिख रहा हूँ, बट दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दिस यू नो वेरी वेल, हमें डी पता चल जाता है कि कितना क्लोज वो जा सकता है, ठीक है। एंड फॉर एनी बी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इट कैन बी बी वैल्यू। तो जो पार्टिकल आपके एट अ इम्पैक्ट पैरामीटर बी पे हैं, उनके लिए क्या आपके एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करेगा। इनिशियली इट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, पहले उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद उसके पास दोनों चीजें हैं, हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर प्लस z square divided by 4 pi epsilon naught r minimum. So for any b which is not equal to 0, this is the conservation of energy. Means this energy will convert into two parts. कुछ potential energy में change होएगा, और अगर जब वो change होगा तो kinetic energy has to decrease, यानी velocity has to be minimum. Okay. So ये तो हमारे कंजर्वेटिव, लेकिन इससे हमें कुछ डेरिवेशन, हमें कुछ आंसर नहीं मिला। हमारे हमारा एम क्या है, एम इज टू फाइंड डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, how the scattering variation is there, how the scattering is happening, what are the different angle you are setting, and how many particles you are getting of what energy. If you are saying it is elastic, then all the particle will have same energy, but how many particles you are getting at 90 degree, 60 degree, 30 degree, 180 degree, this what we have to find. So still we cannot get this number from these information. ये नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, हमें अगर फॉर्मूला याद है तो ये वाला फॉर्मूला हमें फॉलो करना है, जो हमने पहले भी लिखा है। यहाँ पे क्या होता है आई ए, यहाँ पे क्या होता है एन, और होता है डी ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला विच वी नीड टू फॉलो टू फाइंड दिस डी सिग्मा बाय डी ओमेगा। तो हमें ये नंबर सारे चाहिए, तभी हम ये निकाल पाएंगे डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है। सो लेट अस मेक मोर, अब मैं डायग्राम यहाँ से नहीं बना रहा हूँ, अब मैं आपको ना डायग्राम बुक से शेयर कर रहा हूँ। और क्यों बुक से शेयर करूंगा, या रुको मैं पहले बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बनाने में ना बहुत अच्छा नहीं फिगर बनेगा, तो इट इज बेटर फॉलो द बुक डायग्राम, ठीक है। तो मैं बुक से एक बार शेयर कर रहा हूँ। Okay, so screen I have shared, this one. This is the center of the scattering, that is the nucleus, and this is a beam of particle which is mean alpha particle which is going towards the center, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, और ये हमारा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अगर व्यू करोगे तो दैट विल बी अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हमारा जो बीम होगा दैट विल बी अ सर्कुलर, एंड इफ यू टेक द एक्सटेंड ऑफ बीम, सो दैट बीम विल बी समथिंग लाइक दिस वन, अ सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री। ये बीम आगे मूव कर रहा है,
it has so many alpha particles. Okay, so if you see the cross section will be a circular kind of thing. So what they have shaded here means they have took a beam, out of that they took a small shaded portion, and this shaded portion will have certain number of alpha particle throughout the field है, जितना आपका cross section है उसमें सारे में filled है uniformly, but you can take a small ring out of that. This ring is this one, उन्होंने shade कर दिया है. So that ring, whatever the ring you have considered, means you are actually pinpointing all those alpha particle which comes within this ring. तो सबसे पहले हमारा एम क्या है, इस रिंग में कितने अल्फा पार्टिकल है, and what assumptions we have to take that all the alpha particle will do the scattering at once. क्योंकि हमारे पास जो शीट है जिसमें हमारा टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज नॉट अ सिंगल एटम, इट इज अ शीट, एंड दैट शीट इज हैविंग अ थिकनेस. तो वी कैन मिनिमाइज द थिकनेस जितना आप कोशिश कर सकते हो. यू जस्ट टेक थिकनेस टू बी ऑफ माइक्रो और फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो मीटर, so that no nucleus overlap to each other. That is why the gold has been used. अब सोचोगे ना कि क्यों गोल्ड ही क्यों यूज करते हैं ये लोग इस तरह के इंटरेक्शन में, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए. व्हाई नॉट दे हैव यूज्ड द आयरन, व्हाई नॉट दे हैव यूज्ड द निकल. It is impossible to make a sheet of a very thin size. गोल्ड में आपको पता है गोल्ड की थिकनेस बहुत कम भी आप कर सकते हो. So that is even silver is very you can make a very thin sheet of silver. Why we are making so thin that if I look at the sheet, I will see the nucleus, they are not overlapping each other. So they are making a simply a sheet and they are not overlapping. Means what assumptions, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना उस आंसर में हमारे पास डबल स्कैटरिंग भी पॉसिबल है. जैसे एग्जांपल के लिए देखो, दो आपके शीट है, शीट की थिकनेस है, दो न्यूक्लियस आ गए, अल्फा पार्टिकल ये आ रहा है, पहले उसने यहाँ से स्कैटर किया, जब वो इसके पास पहुंचा तो फिर से स्कैटर कर गया और उसका एंगल ये आ गया. एंड आप क्या इमेजिन कर रहे हो कि मेरा ये डायरेक्ट बीम है और इस डायरेक्ट बीम से ये एंगल बनना था, बट आपके पास डबल डबल स्कैटरिंग से डबल एंगल आ गया, बट यू डोंट नो कि एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ. सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. अगर आप दो न्यूक्लियस की साइमल्टेनियस स्कैटरिंग स्टडी करो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द स्कैटरिंग एंगल. सो दिस assumptions we have to take. ये भी assumption का एक पार्ट है कि you have to consider that each alpha particle interact with only one nucleus at one time. Means it is following a scattering by only one nucleus, and it should follow a scattering only once when it is passing through the target. ये assumption बड़ा important अगर derivation कर रहे हैं, because all these assumptions are just assumption. reality में आंसर हमारा कुछ और आता है, and those error will appear. और उस एक्सपेरिमेंट को देख करके उसके रिजल्ट को देख करके फिर उसमें से एरर पार्ट को रिमूव करते हैं कि दिस कुड बी ड्यू टू द डबल स्कैटरिंग और दिस कुड बी ड्यू टू दिस. सो बट वी हैव टू इमेजिन कि हमारे पास एक ही स्कैटरिंग सेंटर है और वो सीरीज में लाइन में, एंड एक अल्फा पार्टिकल एक बार ही स्कैटर हो रहा है. इट इज नॉट डूइंग अ डबल स्कैटरिंग, इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद टू न्यूक्लियस. क्लियर? So this how many alpha particles are there and when they are scattered, and why we are considering all these alpha particles at one go, because they are at a distance, some distance. Means if you take the radius of this one, so that radius is यहाँ पे लिखा भी आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे, this distance is b, which is impact parameter, and this is small thickness is delta b. So we have took a ring of a size, inner radius उसका b है impact parameter, और उसका एक small thickness है db. बट ये डायग्राम में दोनों सेम ही दिख रहे हैं आपको, but this is a small thickness which is db, वहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने db. So ये सारे अल्फा पार्टिकल आपके एक डिटेक्टर जो आपने एट अ डिस्टेंस रखा हुआ है, तो दे विल स्कैटर एट अ सर्टेन एंगल थीटा ओनली इन अ रेंज. वैसे तो एक रेंज में स्कैटर होंगे. इमेजिन करो ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दो इम्पैक्ट पैरामीटर लेते हैं, एक ये है और एक ये है. ठीक है, एक इस डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल है और एक इस डिस्टेंस पे, यानी बी प्लस डीबी पे और एक बी पे. तो किसकी स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगी, बी वाले की होगी या बी प्लस डीबी वाले की होगी? विच वन विल स्कैटर मोर? जो न्यूक्लियस से नीचे होगा वो स्कैटर करेगा ज्यादा, और जो न्यूक्लियस से दूर होगा थोड़ा कम स्कैटर करेगा. तो दे विल फॉर्म अनदर रिंग, दिस रिंग,
where they are appearing at a detector window. ये detector window है, तो detector window का एक size है that will always make a solid angle at the center of this reaction. तो ये एक size है, उसमें आपके पास acceptable क्या होगा? Those alpha particle will come to this detector which is deflected between theta and theta plus d theta, theta and theta plus d theta. तो ये देखो, ये लाइन आपकी, दिस लाइन विच इज ये वाली लाइन, अगर इसको ध्यान से देखो, ये वाली लाइन है, एंड दिस लाइन इज गोइंग इन दिस वे, दिस वन, and this line which is at b plus db distance, they are getting a less scattering, and this is the line. So at a distance, when you are sitting at a distance, you make a ring, and jo whatever the alpha particle was there in this ring, they all will be present in this ring also. Is it clear? Because they all will scatter at least at an angle theta plus d theta. सारे क्या होंगे? या तो थीटा एंड थीटा प्लस d. तो ये अल्फा पार्टिकल जो आपने कैप्चर यहाँ पे किए, जो आपने देखे यहाँ पे इस रिंग में, वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट है, बिकॉज दे ऑल हैव डन द स्कैटरिंग, दे ऑल हैव डन द स्कैटरिंग. और जो स्कैटर हुए हैं, यानी अगर आपने मान के चलो आपके पास न्यूक्लियस 10 थे, एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले रहे हैं, देर इज अ 10 nucleus within your target, and you have 100 of alpha particles, and what the condition you have put, that one alpha particle will do interaction with one nucleus at a time, means nucleus is not going to interact with multiple alpha particles, it will going to interact with only one nucleus at a one alpha particle at a time. तो आपके पास अगर 100 भी आपने पास किए हैं, और जो स्कैटर हो रहे हैं वो किस नंबर पे डिसाइड हो रहा है? जितने आपके न्यूक्लियस हैं उस पे डिसाइड हो रहा है, और जितने आपके अल्फा पार्टिकल इस रिंग में हैं वो सारे यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बिकॉज दे ऑल हैव स्कैटर्ड एट एंगल थीटा. फिर उसके आगे और डिटेल इस डायग्राम में हम चलेंगे, पहले ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है? दिस रिंग having certain number of alpha particle means how many you have bombarded, out of that there is a fraction of alpha particle which is present in this ring, and they all are also scattered at angle theta plus d theta in this ring, which is a ring made by the window of the detector. Is it clear? Yes, sir. Okay, because मैं इससे थोड़ा यहाँ पे डायग्राम अच्छा नहीं दिख रहा, कॉपी में जो बना के दूंगा that will be more improved diagram. And now we can mark from this center to the window center there is a distance r they have written, and this is at an angle theta, and जो ring आपका फॉर्म हो रहा है, यानी ये डिस्टेंस डिसाइड करेगा आप कितना दूर बैठे हो. यहाँ बैठे हो तो इसका रेडियस डिफरेंट होगा, और दूर बैठ गए तो रिंग बड़ा हो जाएगा, और दूर बैठ गए तो रिंग बड़ा हो जाएगा. So ring will change its size as you are moving away from the scattering point. So they have just marked this distance as r because they are deciding, and this is perpendicular, so this is r sin theta because this is theta. So this is r, जो ये बड़ा वाला ring है ना, this one जो detector का ring है, so its radius, inner radius is r sin theta, and this is small thickness of this ring, that is r d theta. We can easily calculate that, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये वाला जो ring है इसका जो थिकनेस होगा, यानी विंडो का जो साइज है आपका डायमीटर, वो आर डी थीटा है, और इसका इनर डायमीटर क्या, ये आपका अगर हाइपोटेन्यूज है तो दिस इज योर रेडियस, दैट विल बी आर साइन थीटा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो दैट आर इज देयर एंड दिस इज आर साइन थीटा. क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ वी विल राइट द फ्रैक्शन, कि कितने फ्रैक्शन particles, fraction of particle, how many alpha particle are there in that ring, that we have to calculate. That is very important, and this you should understand ki yes, this much fraction of particle is there in the ring, and actually we are concerned with those fraction only which are doing the interaction, which are doing the reaction, which are getting scattered. जो scatter नहीं हो रहा हमें उससे मतलब नहीं है. एक nucleus was interacting with one alpha particle, at the same time if you get another alpha particle that will not have an interaction. हमने ये assumptions लेके चल रहे हैं, यानी स्कैटरिंग, जो स्कैटर हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल, they directly depend upon how many target nucleus you have. ठीक है, so in the ring, this ring which we have talked about, which is of value b, and this is db, and they are getting passed towards the nucleus, and this is, we can consider this is the center of the nucleus. So df
वैसे तो पूरा ये अल्फा पार्टिकल से भरा हुआ हमारा क्रॉस सेक्शन जो है बीम का, वो पूरा अल्फा पार्टिकल से फिल्ड है, बट वी आर फोकसिंग ऑन this particular area, how many alpha particles are there, and they are getting scattered at angle theta and theta plus d theta. ठीक है, so df will be nx 2 pi b db. This is area of ring. area of ring लिख सकते हैं ना ऐसे फॉर्मूले में, and this n is number of nuclei per unit volume, and this x is thickness or of target. Yani all those alpha particles which have actually done the scattering, they have done the interaction. They are how many? ये एरिया हो गया रिंग का जो भी एरिया आपने लिया, और हमें वो पार्टिकल नहीं लेने जो इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, हमें वो लेने जो इंटरेक्शन कर रहे हैं। इंटरेक्शन कितने कर रहे हैं? जितने आपके टारगेट न्यूक्लियर हैं। इंटरेक्शन तो उतने ही होंगे ना जितने आपके टारगेट न्यूक्लियर हैं। इवन इफ यू bombard more alpha particle, how many target nucleus are there, that will decide that they will scatter or not. तो आपके टारगेट न्यूक्लियस इससे डिसाइड हो गया, एरियल डेंसिटी, number of particle per unit volume into a thickness, that will give you number of particle per unit area, multiply with area, number of particle per unit area multiply with the area of the ring. Is it clear? Is it clear? Because अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम आगे यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूले का यूज है। Is it clear to you? पीडीएफ क्या बताया आपने? क्या ये देखो, इस रिंग में हमें वो अल्फा पार्टिकल काउंट करने हैं जिन्होंने स्कैटरिंग की है। ठीक है, those alpha particle which have done the scattering means they have deflected from their path. ठीक है, जो मैंने डायग्राम पहले दिखाया था आपको। यस सर। ठीक है, ओके। अब अगर आपने अल्फा पार्टिकल ज्यादा बम्बार्ड किया और आपने assumptions ये लगा दिया है कि एक न्यूक्लियाई एक ही अल्फा पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा, इट विल नॉट डू द मल्टीपल इंटरेक्शन, बिकॉज हमारा फॉर्मूला देखो ना, ऊपर हमने क्या लिखा है। अगर मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ और अज्यूम कर रहा हूँ कि सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो रहा है, और means when I'm writing this one, I am just writing these formula for one alpha particle hitting one nucleus. This is not the practical case. आप एक न्यूक्लियस पकड़ करके नहीं रख सकते हो गोल्ड का, इट इज डिफिकल्ट, यू कैन ओनली हैव द शीट, एंड व्हेन यू हैव अ शीट देयर आर सो मेनी न्यूक्लियस। अगर एरियल डेंसिटी भी आप चेक करोगे तो सिर्फ एरिया पे ही नहीं न्यूक्लियस स्कैटर्ड होंगे, उसके नीचे भी स्कैटर्ड होंगे, उसके नीचे भी होंगे। यू कैन नॉट मेक द थिकनेस ऑफ द साइज ऑफ फर्मी, दैट इज नॉट possible. You can make a thickness of a system or make a thickness of a target up to few angstrom, tens of angstrom, hundreds of angstrom. उससे ज्यादा तो नीचे नहीं जा सकते ना, मतलब माइक्रो रेंज में आप रह सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो कर लोगे, 0.01 माइक्रो तक कर लोगे अगर बहुत अच्छा आपका फॉइल है तो, इफ यू हैव सो गुड मेकिंग अ वेरी थिन फॉइल, so you can go in that detail. So what assumptions we have to make कि स्कैटरिंग जो हो रही है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे डिसाइडेड है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पे डिसाइडेड नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल एक ही बार इंटरेक्ट करेगा, दोबारा इंटरेक्ट नहीं करना है उससे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस से ही डिसाइड होना चाहिए आपका जो स्कैटरिंग है वो। यानी इस रिंग में how many nucleus are there, how many alpha particles are there which have done the scattering, so that will depend upon this number of target nuclei, not number of alpha particle. अब उसके बाद रह गया एरिया ऑफ द रिंग, वो क्या है? वो है 2 पाई बी डी बी, क्योंकि अगर कोई रिंग है, रिंग का अगर एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालोगे? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई बी प्लस डी बी स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर दो, डीबी वाला स्क्वायर वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर दो, बिकॉज दैट इज स्मॉल, सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला 2b db circumference multiply with the, if you cut this and open it, it will become a rectangle, and that rectangle is having
a circumference of 2 pi b and thickness of db. So that is the area. Clear? So the fraction of alpha particle in this ring which have done the scattering, this is the main df meaning, is equal to this one. N is number of nuclei per unit volume, that is number density, thickness of the target, and 2 pi b db. ठीक है, आगे चले. Okay, so now f. Yes, F sir. are those number. F are those number of fraction which is within the impact parameter b. That is, I will draw with blue. Now we have to count how many these are. जो इस जिनका impact parameter b या less than b है. How many they are? They are nx again. How many target nuclei you have per unit area? Multiply with 2, sorry not 2, pi b square. जो इस circle का area है pi b square. That's all. So these are how many? These are what? Those which are present in this one. Why we are writing this one? Because all those alpha particle which are within the impact parameter b, they will scatter at larger angle than theta. क्योंकि वो ज्यादा पास में ना, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे? लार्जर देन थीटा पे स्कैटर करेंगे. ठीक है, ओके. यस सर. नाउ अभी भी हमारा कुछ भी सोल्यूशन नहीं आया है, तो हमें और थोड़ा सा आगे बढ़ना है. Now we have to make the trajectory diagram in more detail, not in detail, but in a concise manner, better manner. So let me just make the diagram for the trajectory कि जो आपका particle है. अब हम actually momentum conservation पे आते हैं. अभी तक हम energy conservation और number of particles को हमने calculate किया. Now we will look at the trajectory कि अब momentum conservation पे हम आते हैं. तो trajectory is this one. The particle is going in this way, and after certain time it will do a deflection. Hyperbola. तो ये 1 by r square पे ना, तो hyperbola form होगा. And this is your center line which is passing through the nucleus. ठीक है. And somewhere here when you are at the center, and this is a perpendicular line which is r minimum जो हमने लिखा था, that was r minimum, and the particle is here, alpha particle that goes there. Initially it has momentum pi, finally it has momentum f, pf, but the both are same. We can always write pi, magnitude में, direction में different है, but magnitude में they are same. They are not going to change because this is a elastic scattering. And this is r minimum, and we have a general distance r also. और ये r चेंज होता रहेगा जैसे जैसे पार्टिकल आपका क्लोजली मूव करेगा और फिर आगे मूव करेगा, तो दिस r इज गोइंग टू चेंज. दिस वी आर एग्रीइंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये r क्या है? एट व्हाट इंस्टेंट द पार्टिकल इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर. तो ये डिस्टेंस हम r, तो ये r तो जब जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है अलग अलग ट्रेजेक्टरी के पॉइंट पे, तो दिस r इज गोइंग टू, समटाइम दिस r विल बी दिस वन, एंड आफ्टर लेटर द r विल बी दिस वन. सो वी कैन से कि r की वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है जैसे जैसे आपका पार्टिकल मूव कर रहा है. And if I draw a more better way the vector diagram of momentum, this is your pi and this is your p final. दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है बट स्ट्रेंथ सेम है. तो मैं वेक्टर का लाइन भी मैंने सेम ही लाइन लेंथ का ड्रॉ किया है, बट डायरेक्शन दे आर डिफरेंट. डायरेक्शन ये है और ये है. ठीक है, तो डायरेक्शन हमारा इसके रिस्पेक्ट में दिस इज थीटा स्कैटरिंग एंड दिस इज द डायरेक्शन. So we can find what is delta p, that is change in the momentum. Momentum तो change हुआ है, तभी तो direction change हुआ, क्योंकि momentum we cannot define only with the magnitude. We have to define in terms of magnitude and direction both. अगर momentum का magnitude नहीं change हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि direction change नहीं हुआ. Direction change हो सकता है. अगर direction और magnitude दोनों ही नहीं change होते हैं, then you have to make in the same diagram. Both the vector will be in the same diagram. अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कुछ भी चेंज हुआ है,
then they are in different way. हो सकता है कई बार डायरेक्शन सेम हो, जैसे कोलिजन में होता है, डायरेक्शन सेम हो सकता है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है. इन सम केसेस magnitude could be same and the direction could change. So there is a change in momentum, and that momentum changes here. If you draw, if you complete this vector diagram, so this is delta p. Clear? This is delta p, and our aim is to find what is delta p. Delta p है कितना? How much momentum change has been imparted to the alpha particle by the Coulomb interaction due to the nucleus, so that it changes the direction of the alpha particle. Clear? This is what we have to find. तो मेन हमारा मेन जो डेरिवेशन है ना पूरा इसी पे फोकस है कि मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया उस फोर्स ने, जो फोर्स उस पे एक्ट हो रहा था, क्योंकि ये जो है ना ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, एंड देयर इज अ फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन दीस टू, एंड एवरी टाइम द अल्फा पार्टिकल इज गेटिंग अ फोर्स वैल्यू. इस वैल्यू को भी निकालेंगे कि कितनी वैल्यू फोर्स की, दैट वी विल फाइंड कि हाउ मच फोर्स इज देयर, एंड दैट फोर्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल. तो एक बार जरा इस डायग्राम को यूज करके डेल्टा पी की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आती है, सिर्फ इस डायग्राम को, जिसमें आपका डेल्टा पी इन टर्म्स ऑफ पी आई या पी एफ, पी आई में रख लो, पी आई के फॉर्म में बताओ कि डेल्टा पी की वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोमेंटम, उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है. फोर्स वाला वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे बाद में, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि फोर्स वाले वैल्यू को भी हमें यूज करना है और उसके बाद हमें दोनों को इक्वेट करना है. तो वेक्टर के टर्म्स में आपके पास डेल्टा पी कितना होगा, इस वेक्टर को सिर्फ इसको ध्यान से देखो और इस डेल्टा पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी आई बताओ. पी एफ माइनस पी आई. वो तो है ही वो तो है, बट पी आई और पी एफ भी तो सेम है मैग्नीट्यूड में. इफ दे बोथ द वेक्टर आर इक्वल, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ये वाला इसी के पैरेलल बनाया ना हमने, दोनों का स्ट्रेंथ तो सेम है ना, तो हम एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस हाफ ऑफ द डेल्टा पी विल बी हाउ मच, थीटा के टर्म्स में भी, थीटा भी इसमें है ना, तो थीटा के टर्म्स में बताओ. दिस इज थीटा, दिस इज हाउ मच, ये कितना होगा. if this is theta means this is theta, then this is theta by 2. ये थीटा पे 2 होगा ना, मैंने इसको हाफ कट किया ना, आधा ये रहा वेक्टर आधा ये रहा, इनके बीच में थीटा है, तो दिस इज थीटा बाय 2, और मुझे ये फाइंड करना है दिस वन, फिर इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये यानी डेल्टा पी पूरा मिल जाएगा. तो हाउ मच दिस पार्ट इज, hypotenuse is there, 90 degree is there, theta is there, so opposite side by hypotenuse, opposite side by hypotenuse, so this must be 2 times mv naught sine of theta by 2. ठीक है, is it okay? या नहीं? Can we write this one in terms of initial momentum? This is in mv naught is pi. In terms of initial momentum and scattering angle, delta p is this one using this diagram. Is it okay? हाँ ना Yes, कुछ तो बताओ. Okay. This is due to the just yes a sir, vector ये diagram. हाँ वेक्टर डायग्राम बनाया और हमने पी आई के terms में डेल्टा पी निकाल लिया. अब हम निकालते हैं डेल्टा पी, हाउ मच दैट इज इन कंसर्न विद फोर्स. एक्चुअली जो वैल्यू है ना डेल्टा पी उसको हम निकालते हैं. तो डेल्टा पी मस्ट बी dp, and that dp is actually the force into dt, and how much this force is, oh sorry,
how much this force is. You have to integrate because when the particle is here, let me just take the pen. इस डायग्राम को फोकस करो जो दूसरा वाला है, this one. So when the particle is at a different point, you have a force value. दोनों के बीच में कूलम इंटरेक्शन है, कितना है? Z चलो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, square upon 4 pi epsilon naught r square. Z E square upon 4 pi epsilon naught r, है ना? सॉरी आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, फोर्स है ना, एनर्जी नहीं है, आर स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो लेट अस डू वन थिंग. हम एक चीज पे पहले श्योर हो जाते हैं. जब पार्टिकल यहाँ पे है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, आउटपुट फोर्स है जो उसको पुश कर रहा है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है. जब पार्टिकल यहाँ पे है तब भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तब भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तब भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जब तक वो रेंज में है. यानी यहाँ से लेकर के स्टार्ट होते हैं यहाँ तक. एंड वी कैन टेक द इनिशियल रेंज टू फाइनल रेंज आल्सो, दैट इज नॉट अ बिग इशू. बट whatever the force is there, the net effect, यानी जो net effect आया उस force का, that is a impulse which has been imparted, that is a momentum change which has been imparted, and that momentum change is imparted along this direction only. Clear? भाई चाहे ये फोर्स एक्ट कर रहा हो उस समय जब यहाँ पे है पार्टिकल, तो दूसरा फोर्स है, तीसरा है F1 F2 F3 F4 F5 so on, multiple forces, and all are having a different value. But the effective value of those all the forces which is along this direction, which is your delta p direction. Agree? भाई नेट मोमेंटम तो इसी डायरेक्शन में चेंज हुआ ना, और इक्वेशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp/dt, यानी जो डायरेक्शन डेल्टा टी यानी चेंज ऑफ मोमेंटम की है वही डायरेक्शन आपके फोर्स की होगी, यानी वही फोर्स इफेक्टिव है जो डेल्टा पी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. एग्री? एग्रीड या नहीं? अच्छा इस पे तो एग्री हो रहे हो कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स की वैल्यू होगी क्योंकि आर चेंज होता रहेगा ना. Yes, sir. Okay, thumbs up is there. Thumbs up is there. Okay. So we have to find the component along this direction due to all the forces. तो सारे फोर्सेस का हमें इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए. तो एक मैं एंगल आपको दे रहा हूँ जस्ट एक जनरल फोर्स के लिए. दिस एंगल इज बीटा. तो मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इससे कंफ्यूज है, हम नीचे आ जाते हैं. दिस एंगल इज बीटा. तो इस लाइन से इस डायरेक्शन को मैं इसको बीटा ले रहा हूँ, ठीक है. और जब मैं उधर जाऊंगा तो उधर भी वो उसी सेंस में मूव करे, यानी बीटा इज देयर. तो बीटा एंगल मैंने कैसे डिफाइन किया है, मैंने ऐसे डिफाइन किया है. दिस इज योर डेल्टा पी डायरेक्शन एंड दिस इज अ जनरल यानी आर डिस्टेंस एंड दिस इज योर बीटा, यानी ये, और ये आपका ट्रेजेक्टरी है. ठीक है, तो मैंने एक जनरल डायरेक्शन में किसी आर डिस्टेंस पे बीटा डायरेक्शन ले लिया है. ओके, सो अब मैं फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ एंड लेट मी जस्ट सी कि यही लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये वाला डायरेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, एंड वी आर टेकिंग इन दिस वे. सो लेट मी जस्ट राइट एंड सी इफ इट इज ओके. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही होगा तो उसको हम बाहर ले लेंगे, और हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर विच इज नॉट अ कांस्टेंट which will change as you move in the trajectory, and cos of beta delta t. This is cos of beta actually.
कैन बी राइट इन दिस सेंस, कोसाइन फैक्टर ही होगा ना उसका, या कोई और फैक्टर होगा, साइन फैक्टर होगा। कोसाइन फैक्टर ही लेंगे, चेक करो वेक्टर के हिसाब से। चलो कोसाइन फैक्टर ही लेंगे, मैं ही बोल देता हूँ। ओके, सी दिस वन, इसको परपेंडिकुलर बना के देखो, इसके कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कोसाइन फैक्टर ही आएगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो cos ऑफ बीटा। सो बीटा मैंने एक न्यू टर्म डिफाइन कर दिया, उस cos ऑफ बीटा मैंने ले लिया। अब मुझे इसके कंडीशन डालने की, ये जो डेल्टा टी है, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन मेरा डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में, एंड आई डोंट नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एंड बीटा। मेरे को ये भी नहीं पता कि डेल्टा टी और बीटा के बीच में क्या रिलेशन है अभी। बट व्हाट आई कैन से कि when the experiment started, I will treat that time as a zero, and when the experiment ended, means the particle has scattered and it has gone to the detector, so that I will take as time infinity. So I can take this one. So what I can take, I can take zero time when t started, when you started the experiment, and when it reaches to the detector, so that is infinity. हम वो लेके चल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमारा इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में है, एंड टाइम और बीटा का हमें रिलेशन पहले देखने की क्या है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि when t is zero, then beta is what? And when t is infinity, in end of the experiment, what is beta? अगर ये रिलेशन हमें पता चल जाता है, then we can do the replacement. हम हमें लिमिट्स की भी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, और बीटा और डेल्टा टी की भी हमें पहले तो हमें देखना है कि हमें क्या इनके बीच में कुछ, अभी तो रिलेशन हमें नहीं पता चला, बट एटलीस्ट जब टाइम जीरो है, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, तो बीटा की वैल्यू क्या है? यू सी द डायग्राम, and we are very far from the nucleus, then what is the value of beta in terms of theta? Should I make another diagram for you? See this one. सारा एक ही पॉइंट है। तो जब हम बहुत दूर थे न्यूक्लियस से, तो बीटा की वैल्यू क्या थी? ये बीटा कितना था? बताओ। 180 minus theta. 180 minus theta. You're saying 180 minus theta. 180 आपने कैसे लिया? मतलब अगर बहुत दूर है तो इट विल बी समवेयर हियर, सो दैट लाइन बीटा विल बी वेरी लार्ज वैल्यू, है ना? जब आपका पार्टिकल बहुत दूर है तो बीटा बहुत ज्यादा होगा, अराउंड पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा, इट विल अप्रोच पाई बाय 2, एंड 180 माइनस थीटा कैसे लिया आपने? 180 माइनस थीटा, एक बार मुझे जरा बताओ। ऐसे सही है, इट इज करेक्ट, और एंटी क्लॉकवाइज है तो वी विल टेक माइनस साइन, इफ इट इज क्लॉकवाइज वी विल टेक प्लस साइन। वन एटी माइनस थीटा मुझे एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। When the particle is very far somewhere here, then this is very large, so पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा ही करेगा, बट ये बीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा
आपने कैसे बताया? वन एटी माइनस थीटा है क्या? टोटल हाँ, एंगल और थीटा टोटल एंगल एंगल ऑफ स्कैटरिंग। माइनस थीटा। हाँ, टोटल एंगल आपका कितना है? यस 180 है। सर, ठीक। विक्टर और और थीटा थीटा के माइनस कर बीच दो में तो भी ये हो गया। एंगल। तो इट विल बी 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। विल इट बी? यही तो आपका टोटल 180 माइनस थीटा वाला एंगल है। इसका हाफ पार्ट ही तो बीटा है ना, इधर वाला बीटा हाफ ही तो है। ये थीटा है आपका, ये टोटल 180 है। अगर लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है तो दिस एंगल इज हाउ मच? दिस इज 180 माइनस थीटा, बट बीटा इज हाफ ऑफ दैट ना। बीच में हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ना इन दोनों लाइन के। सो दैट विल बी 180 माइनस थीटा बाय 2 एंड वी विल टेक माइनस साइन। हमने एंटी क्लॉकवाइज भी लिया। दिस इज माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। एग्री? 180 माइनस थीटा को हाफ करना पड़ेगा ना बीटा के लिए। ये तो पूरा ये वाला वैल्यू है ना, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज अ बिग वैल्यू। बीटा कितना है? बीटा तो यस सिर्फ हाफ ऑफ दैट है। ठीक है। In the same sense, when you go in the other way, when the particle is very far from after the scattering somewhere here, so this will be plus pi by 2 minus theta by 2. तो स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट के टाइम पे क्या थी, बीटा की वैल्यू थी वो हमें पता चल गया। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट बीटा की वैल्यू क्या है वो भी हमें पता चल गया। बट हमें बीटा और डेल्टा टी के बीच में अभी भी रिलेशन नहीं पता है। जब तक बीटा और डेल्टा टी के बीच में रिलेशन नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। लिमिट्स तो हमने चेंज कर ली, बट इंटीग्रेशन हमारा अभी भी डेल्टा टी के टर्म्स में है। यानी जितने टाइम इंटरेक्शन हुआ उतने टाइम के लिए आपका डेल्टा पी में ट्रांसफर हुआ। यानी हाउ मच मोमेंटम हैज बीन इम्पार्टेड, मोमेंटम चेंज हैज बीन इम्पार्टेड, दैट विल डिसाइडेड बाय द हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड इन विद द फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स के साथ आप जितने टाइम तक रहे उतने टाइम तक आप में मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। सो नाउ वी हैव टू डू वन मोर थिंग। हमने लिमिट्स तो चेंज कर ली कैसे भी खींच तीर के, सारे तिकड़म लगा करके लिमिट चेंज कर ली। बट वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन cos ऑफ बीटा, नॉट cos ऑफ बीटा बट बीटा एंड bt। जब तक बीटा के टर्म्स में हमारा इंटीग्रेशन नहीं बनता है और या t के टर्म्स में हमें सब कुछ नहीं पता होता है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो नाउ दिस मोशन इज when you look at this only small part of the motion, that is something which is a part of a circular motion, you can say, in certain way. वो hyperbolic है, but it is a curvature, it is not a straight line motion, so that is a curved motion. तो जब भी curved motion होता है तो उसकी velocity को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। if you remember this one, this is t and plus r d beta by dt beta unit vector। तो कोई सर्कुलर मोशन अगर आपके पास है तो सर्कुलर मोशन को आप एंगुलर टर्म में लिख सकते हैं। नहीं, हमेशा सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यू हैव अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, यू हैव अ रेडियल वेलोसिटी। So those velocity which is along the radius, that is called radial velocity, and those velocity which is along the tangent of that particular radius। तो radius या जिस भी आपको सर्कुलर फॉर्म है उसमें आपके टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है उसको हम एंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। और जो आपका रेडियल के अलॉन्ग होता है, यानी कोई भी ऐसा मोशन है, यानी something like this one, you are sitting here and particle is moving in this way, so whenever there is a not a straight line, it is a curvature, anytime you have two component in that velocity, one which is along the radius and one which is along the line। तो इन दोनों का ही मिलकर के यहाँ पे वेलोसिटी फॉर्म हो रहा है, विच इज विद मींस रेडियल कंपोनेंट में आपको वर्क करना है। तो रेडियल कंपोनेंट में दो ही कंपोनेंट होता है, आर एंड थीटा। ठीक है। तो हमारे अल्फा पार्टिकल के लिए भी वी कैन ब्रेक दैट इनटू टू पार्ट। जब ये यहाँ से कर्वेचर के फॉर्म में जब उसकी मोशन हो रही है तो उस कर्वेचर में वी कैन कन्वर्ट इनटू टू पार्ट्स। उसकी वेलोसिटी को हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होगा रेडियल विच इज अलोंग डेल्टा पी एंड वन विच इज टेंजेंशियल टू डेल्टा पी, वन विच इज अलोंग डेल्टा पी एंड वन विच इज टेंजेंशियल टू डेल्टा पी। तो ये हमारा रेडियल यानी डेल्टा पी के डायरेक्शन में, ये हमारा
टेंजेंशियल टू डेल्टा पी के डायरेक्शन में। क्लियर? तो हमें एंगल और टी, एंगल और टी यानी बीटा और टी के बीच में रिलेशन मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला है? पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में आप जब वेलोसिटी को लिखते हो तो कोई सर्कुलर मोशन है या कर्व्ड मोशन? यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? अगर कोई v है विच इज vx प्लस vy है और ये j वेक्टर में या आयोटा वेक्टर में, this can be written in vr which is in r unit vector and v theta which is in theta unit vector, and v theta is r d theta by dt, है ना? ऐसे ही लिखते हैं ना? yes, no, yeah, thumbs up, okay, thumbs up is there. Yes. So using this, थोड़ा सा ये लेंदी है, डेरिवेशन इज लेंदी, बट 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, या 12 मार्क्स को एटलीस्ट आता है। सिर्फ ये 4-5 फिगर्स बनाने हैं, डेरिवेशन लिखना है, बस, तो कहीं नहीं जाएंगे। दिस इज वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, दोनों एनर्जी कंजर्वेशन लिखना है, फिर उसके बाद डेल्टा एफ और डी एफ और एफ की वैल्यू लिखनी है, थोड़ी सी समझाने की भी एनएक्स हमने क्यों यूज किया, बिकॉज वी हैव टुक assumption, and then you have to go to the vector diagram of the delta p। तो delta p vector diagram से आपका delta p इनिशियल मोमेंटम के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला आ गया which is here 2mv, this one 2mv naught sin theta by 2 आ गया, but still we don't have the formula to find delta d sigma by d omega। तो हमने क्या किया, डेल्टा पी की वैल्यू फोर्स के टर्म में, बिकॉज हाउ मच फोर्स इज देयर एंड हाउ मच मोमेंटम हैज बीन इम्पार्टेड, एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट। तो वो हमने कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट किया। तो हमारा डेल्टा टी, हमने डेल्टा पी को लिख सकते हैं एफ डेल्टा टी विच इज इम्पल्स विच इज बीइंग ट्रांसफर टू द अल्फा पार्टिकल। एफ की वैल्यू हमने लिखी और एफ की इफेक्टिव वैल्यू कोसाइन बीटा से डिसाइड होगी, बिकॉज दैट इज डायरेक्शन ऑफ द डेल्टा पी चेंज, तो फोर्स का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। उसके बाद हमने बीटा और डेल्टा टी का इंटीग्रेशन, इसमें हमें किसी भी फंक्शन को किसी भी दूसरे के फंक्शन के फॉर्म में नहीं पता, सब कुछ इंडिपेंडेंट लग रहा है, तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू। सो हमने पहले तो लिमिट्स को चेंज किए और उसके बाद अब बीटा और डेल्टा टी को भी हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, एंड फाइनली वी कैन डू द डेरिवेशन इफ वी आर एबल टू रिप्लेस। अब मैंने रिप्लेसमेंट के लिए हमें अपने वेलोसिटी को पोलर फॉर्म में लिखना पड़ गया, जिसमें कि रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल एजिमुथल कंपोनेंट आ गया, and we can say that momentum, angular momentum conservation, that is angular momentum आपका जो इनिशियली रहेगा वही इन बिटवीन भी रहेगा जब रिएक्शन हो रहा है, और आफ्टर दैट दैट विल रिमेन सेम। so angular momentum conservation means li must be equal to l final, sorry, l final or l at any intermediate point, that is a during the reaction. so during the reaction angular momentum is not going to change because this is a elastic scattering। l initial हमें पता है कि क्या था, m v नॉट b था, और l फाइनल ना लिख करके, एल फाइनल भी यही वैल्यू है, तो हम उसे लिख करके कोई फायदा नहीं है, वी डोंट गेट एनीथिंग। बट व्हाट इज द एल एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन, मींस व्हेन यू आर समवेयर हियर इन द डायग्राम, आप ट्रेजेक्टरी के इस पॉइंट पे हो, तो उस समय एल की वैल्यू क्या होगी? हमने एक जगह लिखा है कि एम वी मिनिमम आर मिनिमम, बट ना तो हमें वी मिनिमम पता है ना तो आर मिनिमम पता है, so we will not use that formula, but we will write v minimum and r minimum in some other form using this formula। क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके? यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंटरैक्शन व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एम वी थीटा एंड आर, जो इस पॉइंट पे एक जनरल आर, चाहे यहाँ पे हो कहीं पे भी हो, बिकॉज एक सेकंड होल्ड करना। सो वाई हैव, अब मैं वी आर नहीं लूंगा यहाँ पे वी थीटा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है आपके
किसी भी मोशन इस पॉइंट पे भी आपके वी आर की वैल्यू ये होगी, वी थीटा की वैल्यू, वी थीटा विल बी दिस वन एंड वी आर विल बी this one. At this point, v theta will be means every time the v theta which is perpendicular to the radius. So v theta into r means actually जो फॉर्मूला लिखने का तरीका है r cross p है, but p theta which is azimuthal momentum which is perpendicular to the radius. So we can easily write this formula. अब हमारा v theta क्या है, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखी दिया, v theta is r d beta by dt into r. So this is m r square d beta by dt, and that is equal to mv naught p. This is important which you have to remember if you forget in the exam. ऐसे तो ऑनलाइन में फॉरगेट नहीं करोगे, कोई ना कोई हेल्प कर देगा आपको, but this is what you have to remember if you are sitting for the physical exam. So this is very important. mv theta into r. So this is the angular momentum, effective angular momentum at the time of any point when you are here in the trajectory. So now you can easily write what is dt in terms of means you can replace this dt. अब आपको dt का मिल गया फॉर्मूला कि dt क्या है. So this I will write here dt divided by r square. इधर एक r square का टर्म है ना ऊपर, तो उसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ और dt को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, बाकी सारे टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं. तो वी विल गेट व्हाट m is going to cancel out, v नॉट b नीचे आ जाएगा और d बीटा. सो d बीटा v नॉट b. आई थिंक यही होना चाहिए और तो कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द कन्वर्जन फैक्टर यू गॉट. यानी dt divided by r square can be replaced by d beta v naught b. b is the impact parameter constant, v naught is a constant factor. अब हमारा cos बीटा डी बीटा का इंटीग्रेशन करना है बस. यानी पूरा कहानी करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन इज लेफ्ट ओवर विथ cos ऑफ थीटा डी थीटा वाला टर्म. यानी यहाँ थीटा की जगह हमारा बीटा है तो यहाँ बीटा लिख दो और लिमिट इज ऑलरेडी देयर विच इज गोइंग फ्रॉम माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू टू प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू. And just this integration you have to do and put the limits and find the how much delta p has been imparted due to the Coulomb interaction between the projectile and the nucleus. ठीक है. तो अब ये cos थीटा का क्या साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा में दोनों वैल्यू डाल दो तो 90 माइनस थीटा वाला टर्म है तो फटाफट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस डेरिवेशन इज मोर लेस इट इज नॉट एंडेड बट वी हैव रीच टू द हाफ वे, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो एम है इसको निकालना है. दिस वी हैव टू फाइंड, दिस इज द मेन एम. अभी भी हमारा ये नहीं निकला जब तक हम इस फॉर्म में इक्वेशन को नहीं लिखते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें अब निकल गई. How many particles are there which is getting after scatter, how many particles we can count and how they are related to initial number of particle, target nuclei, areal density and d omega. तो ये सारी चीजें हमें निकल गई. तो पहले हम निकाल लेते हैं this one, how much force is there. मैं थोड़ा सा दूसरा पेज नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज क्लास खत्म होने वाली है. आधे घंटे की क्लास हमारी ऐसी ही खराब हो जाती है मंडे बट दैट विल नॉट बी टाइम कंस्ट्रेंट. टाइम हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे पहले ही खत्म करने का. सो द फाइनल फोर्स वैल्यू और डेल्टा पी हम निकाल लेते हैं. डेल्टा पी विल बी जेड जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन cos of beta d beta, and there is a v naught and b term is there, and minus pi by 2 minus theta by 2 bracket close plus pi by 2 minus theta by 2. This we have to do. So this will be, ये दोनों constant है तो ये भी हम बाहर pull out कर सकते हैं. So I just write the final value of this one. So that will be z z e square divided by 4 pi epsilon naught. V naught will be there, beta impact parameter b will be there, and we have cos of theta by 2. ठीक है, क्योंकि cos डी बीटा में साइन देगा, साइन में फिर हमें पाई बाय 2 डालना है तो साइन 90 माइनस थीटा फिर से हमें cos दे देगा तो cos थीटा बाय 2 आएगा.
चेक कर लो, एक 2 का फैक्टर भी आएगा शायद, ये 2 का फैक्टर नहीं आएगा, एक बार चेक करो कि cos थीटा बाय 2 ही आएगा या 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा बाय 2 आएगा, जस्ट चेक दैट। मल्टीप्लाइड बाय 2। cos थीटा बाय 2 ही आएगा सिर्फ, 2 आएगा सर मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई में 2 आएगा, ओके। सो 2 विल बी, बिकॉज दोनों है ना, दोनों में हमारे पे cos थीटा ही आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। नाउ दिस यू हैव टू इक्वेट विथ what you have found previously, that is using vector diagram, that is this one, this one, 2 mv naught sin theta by 2। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला हमें इक्वेट करना है इससे, 2 mv naught sin theta by 2। इन दोनों फॉर्मूले को हमें इक्वेट करना, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और हमें फाइनली जो निकालना है रिलेशन ऑफ बी, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल, यानी किस इम्पैक्ट पैरामीटर पे अगर कोई पार्टिकल है, इफ इट इज एट बी देन हाउ मच scattering will happen, if it is at b1 then how much scattering is going to happen, if it is at b3 then how much scattering is going to happen। So we have to just equate these two, and the final relation between your b and theta will be somewhere, कहाँ लिखूं, चलो ऊपर पहले आप एक बार सॉल्व कर लो, मैं फिर यहीं नीचे लिख दूंगा, यहीं पे साइड में, या यहाँ पे लिख देते हैं b। So b will be equal to how much? क्या करोगे आप, b को एक तरफ रखो, यानी b को ये डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, बाकी सारे टर्म को यहाँ पे लेके चले आओ। cos थीटा बाय 2 है, sin थीटा बाय 2 है, तो आप देखो क्या बन सकता है, b इधर आएगा अपर साइड में, तो sin थीटा नीचे नीचे जाएगा ना, तो cos बाय sin विल बी cot, एंड cot के अलावा बाकी सारे टर्म मिलकर के आपके, देखो क्या बनता है, वी नॉट भी आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो दे विल मल्टीप्लाई, दे विल नॉट डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, तो वी स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, एक मास है तो एम वी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, ठीक है, एम वी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, और ध्यान से देखना कहीं ये टर्म तो नहीं आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो डी के टर्म्स में लिख देना, और यही आ रहा है, जेड जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई नॉट आ रहा है आपके पास, एम वी नॉट स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ गया, हाफ यू कैन इंक्लूड, आपके पास एम वी स्क्वायर ही आ रहा है, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड कर दो, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक टर्म आ जाएगा। बचा क्या, बचा कुछ नहीं, इट मींस दिस इज इक्वल टू डी बाय 2 कॉट थीटा बाय 2। इसको हम कर देते हैं बॉक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रिसाइज फॉर्मूला, मतलब ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल का ये रिलेशन है फॉर अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग, यानी कितने डिस्टेंस पे, यानी कितने डिस्टेंस पे आपका अल्फा पार्टिकल हिट करेगा आपके न्यूक्लियस को, तो किस एंगल पे एमिट होगा, यू कैन इजीली फाइंड, या किस, एक्चुअली ये फॉर्मूला इस सेंस में इसलिए लिखा है बिकॉज यू नो एट व्हाट एंगल द अल्फा पार्टिकल इज कमिंग आउट, बिकॉज यू आर कीपिंग योर डिटेक्टर देयर, तो डिटेक्टर आपने कहाँ रखा है, अल्फा पार्टिकल आपको मिल गया, तो थीटा यू ऑलरेडी नो बाय while doing the experiment। बी निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बी जो है, बी आपके फर्मी डिस्टेंस में होता है, इट इज नॉट मिलीमीटर और समथिंग, इट कुड बी अ फ्रैक्शन और टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फर्मी, और कैन बी अ एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, बिकॉज एंगस्ट्रॉम वाले जो पार्टिकल्स होंगे न्यूक्लियस से एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे, हार्डली दे विल इंटरेक्ट, दे विल जस्ट पास फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो उस शीट से पास हो जाएंगे, बट दोज विच आर वेरी क्लोज, यानी जो फर्मी रेंज में बी की वैल्यू होगी, यानी टेंस ऑफ फर्मी, 50 ऑफ फर्मी, और मे बी 100 ऑफ फर्मी, दे विल डू द स्कैटरिंग। इट मीन्स if you're sitting at 60 degree, if you're getting a particle at 60 degree, then you can easily predict that what was the impact parameter for that particle, because you cannot measure, you don't have a microscope to see the impact parameter, so you can find the impact parameter because you know at what angle the things are coming out। तो आज के लिए हम इतने ही खत्म करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं, कल वाले में हम डी सिग्मा बाय डी ओमेगा कल निकालेंगे, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग को जोर देने से अच्छा
कि यहीं पे आज एंड करते हैं। तो डेरिवेशन इज इन डिटेल, बट you can do it. This is not a very nuclear physics का कोई derivation नहीं है. It is just a classical derivation. आपके पास energy है और आपने वेक्टर डायग्राम में मोमेंटम देखा, फिर आपने अपने पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म यूज किया वेलोसिटी को लिखने के लिए, फिर आपने एंगुलर मोमेंटम कंसिडर किया, फिर आपने डेरिवेशन. तो देयर इज नो न्यूक्लियर फिजिक्स इज देयर, ओनली इलेक्ट्रोस्टैट एंड क्लासिकल मैकेनिक्स. तो ये हम आज एंड करते हैं. कल हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा सा हमारा जो फॉर्मूला है ना, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, वो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का होगा, एंड हाउ वी फाइंड दिस वैल्यू फॉर अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग. ठीक है. तो clapping is there for ending the class. So I will end the class. I will not leave your clappings wasted. Okay. There is a message. Message is for who is given. Okay. Sir, 3 sec more delay. Use thumbs up. Round trip is क्या है ये मैसेज, मुझे समझ में नहीं आया. थोड़ा एक्सप्लेन करो विकास. 3 सेकंड से ज्यादा डिले होगा तो थम्स अप यूज करेंगे. नहीं सर, उसका इंटरनेट स्लो है ना, वो 3 इंटरनेट का 3 सेकंड अच्छा, का वो डिले 3 दे रहा सेकंड डिले होने के बाद वो देगा. ओके ओके. नेटवर्क ट्रिप इज दिस मच. ओके. रिसीव पैड. अच्छा, आपका ट्रिप एंड होने वाला है. दिस मच ऑफ डेटा यू हैव यूज्ड. व्यू मोर डेटा प्लान. ओके. चलो मैं खत्म ही कर रहा हूँ. एंडिंग द, पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ सो दैट इट इज सेव्ड, and we will meet tomorrow.